Greetings everyone, my dear students. How are you? I hope you all are fine and you all are doing your work honestly. My dear students, in this video we will discuss the fifth sum of exercise 8.1, and the statement of the fifth sum is: show that if the diagonals of quadrilateral are equal and bisect each other at 90-degree angle, or it means at right angle, then it is a square. Firstly, we have to find out whatever it is given and whatever we have to prove out from this statement. Okay, in this statement it is given that we have to show that the diagonals of a quadrilateral, it means a quadrilateral is given, a B C D is a quadrilateral, and the diagonals are equal in this quadrilateral. It is also given that AC equal to BD and bisect each other. It means the diagonals bisect each other. Bisect means they intersect each other at equal point. OD equal to OB and OC equal to OA. ठीक है? At right angle means this angle is 90 degree. Like this angle is 1, 2, 3 and 4. All 1, 2, 3, 4 angles are 90 degree and they intersect at point O. Clear? These are given. Then we have to prove that this quadrilateral is a square. तो हमें प्रूव करना है कि ये quadrilateral क्या है, एक square है. Understand statement? Okay. Firstly, it is a theorem, so we have to write given to prove and proof. Okay? तो given में क्या लिखोगे? Given. It quadrilateral is given. तो first point है हमारा ABCD is a quadrilateral. ठीक है ना? Given का first point यही है. Show that the diagonals of quadrilateral. So ABCD is a quadrilateral. Quadrilateral. ठीक है. Second point क्या given है? Diagonals are equal. It is also given है. तो diagonals क्या है इस quadrilateral के? AC and BD. तो it is given that AC equal to BD. And the third point क्या given है? Diagonal bisect each other at right angle. Bisect means OA equal to OC and OB equal to OD. ठीक है ना? And the fourth point क्या given है? They bisect at 90 degree means angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4 equal to 90 degree. These all 4 points are given in this statement. Understood? Now what I have to write? What we have to prove out. तो आप लिखो to prove. अब हमें क्या निकालना है? हमें बताना है ABCD is a square. This we have to prove out. हमें इस क्वाड्रिलेटरल को इस कंडीशंस के साथ एक स्क्वायर प्रूव करना है. क्लियर? ओके. नाउ द मेन पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूफ. ओके, ये दिस इज द मेन पार्ट. इसी में आपको जो निकालना है वो प्रूव आउट करना है. क्लियर? अब फर्स्टली रिमेंबर द all the properties of the square. You have to remember all the property of a square. कि square की क्या properties होती हैं. ठीक है? In square all 4 sides are equal and all 4 angles are 90 degree. ठीक है ना? And all 3 conditions are given of the square कि diagonals equal हैं, bisected 90 degree में है. But if we prove out these 2 conditions, then this quadrilateral become a square. तो ये quadrilateral क्या बन जाएगा? एक square बन जाएगा. So for our motto is to find out. और हमारा क्या aim है? हमें क्या find out निकालना है, prove करना है कि all 4 sides are equal. हमें दिखाना है AB equal to BC equal to CD equal to DA. एंड सेकेंड पॉइंट हमें शो करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है ना? ये 2 पॉइंट्स के बाद हम कह सकते हैं दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर. ओके, तो फाइंड आउट. Yes, my dear students, if we have to prove that all 4 sides are equal, then we have to take, firstly I will take this triangle and this triangle. पहले मैं ये 2 ट्रायंगल लूंगी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी, देन आई विल शो दैट AB और DC साइड्स इक्वल है. ठीक है ना? तो हमें पहले लेंगे इन ट्रायंगल AOB
ट्रायंगल COD, मैंने AOB और COD दो ट्रायंगल ली, ठीक है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि देखो AOB में एंगल 3 है और COD में एंगल 1 है, दे बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर 90 डिग्री एंगल, और बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आल्सो आर इक्वल। तो आप लिखो AOB में एंगल 3 है, देखो पहले ट्रायंगल AOB है ना, तो पहले AOB की सभी साइड्स लिखनी है, फिर COD की। तो AOB में एंगल 3 है, COD में एंगल 1 है। इसका रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री। सेकंड, दे डायगोनल्स बाइसेक्ट गिवन है, तो इट इज गिवन कि OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, तो वही लिख दो, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ठीक है ना। इसके रीजन में आप ये भी लिख सकते हो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और यू कैन राइट गिवन, क्योंकि इधर गिवन है, हम लिख देते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओके, नाउ चेक करते हैं कि किस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट है। साइड देन एंगल देन साइड, साइड देन एंगल देन साइड। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AOB is congruent to triangle COD, ठीक है ना। Now if the triangles are congruent, that this means that they both triangles are same shape, same size. तो all three angles of first triangle are equal to corresponding all three angles of second triangle, and all three sides of first triangle are equal to corresponding all three sides of second triangle. Understood my dear student? तो देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो रिमेनिंग तीसरी साइड ये रहेगी और इस ट्रायंगल में तीसरी साइड ये रहेगी, दैट मींस दे मस्ट बी इक्वल। ये जरूरी है ना कि यही इक्वल होगी, तो AB इक्वल टू CD। आप लिख दो कि दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू CD। रीजन क्या है? बाय CPCT, ठीक है ना, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही तो है CPCT, ठीक है ना। तो AB और CD इक्वल आ गए। हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया कि हमें दिखाना था कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, हमें साइड्स इक्वल दिखा दी, AB और CD क्या हो गए? इक्वल आ गए, ठीक है ना। नाउ हमें तो चारों साइड्स इक्वल दिखानी है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल दिखा दी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल है और एक ये इक्वल साइड्स हैं और एक लाइन दोनों साइड्स को कट करती है, ठीक है ना। तो अगर मैं दिखा दूं दिस एंगल इज 5 एंड दिस एंगल इज 6, ठीक है ना। देखो इक्वल साइड, इस साइड के साथ इस लाइन ने एंगल बनाया, उसी इक्वल साइड के साथ इसी लाइन ने एंगल बनाया, दे बोथ एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। वैसे भी दे बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो मैं कह सकती हूँ कि इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, ठीक है ना, बिकॉज बाय CPCT। अगर मैंने लिखा 5 और 6 CPCT से इक्वल है, तो 5 और 6 क्या है? एक लाइन के अपोजिट साइड बने, एक ऊपर एक नीचे, तो दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमने 6th चैप्टर में क्या पढ़ा था? रीजन रिजल्ट लाइंस एंड एंगल्स में, इफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। तो अगर 5 और 6 CPCT से मैं इक्वल लिखती हूँ और फिर लिख दूंगी दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो AB पैरेलल CD, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप लिखोगे, तो आपने AB और CD को CPCT से इक्वल दिखाया, फिर अब दिखाना एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है ना। ये भी किसे दिखाया? CPCT से। बट आप देखोगे दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर दोनों 5 और 6, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इसे क्या होगा कि AB पैरेलल CD। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या होते हैं? जिसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने हैं, दैट लाइंस आर पैरेलल। तो AB पैरेलल CD हो गया। अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने क्या दिखा दिया? एक पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल बन जाए तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने अभी बेसिक थ्योरी प्रॉपर्टी में पढ़ा ना, इन्फिनिट क्वाड्रिलेटरल, अ पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज द पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं कह सकती हूँ ये पेयर भी इक्वल पैरेलल है और ये पेयर भी इक्वल और पैरेलल है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट?
इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, सो दैट आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रिजल्ट ऑफ द 8 थ्योरम्स, बेसिक थ्योरम्स, बिकॉज हमें ये रिजल्ट यूज करने हैं 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि ए बी और सी डी पैरेलल भी हैं और ए बी और सी डी इक्वल भी हैं। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो अब मुझे, क्योंकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट तो इक्वल नहीं होती, बट हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो मुझे दिखाना होगा ना कि ये एडजेसेंट भी इक्वल है। तो अब मैं दिखाऊंगी कि ये दो साइड्स या ये दो साइड्स भी इक्वल है, एडजेसेंट का पेयर इक्वल है। तो एडजेसेंट के पेयर के लिए मुझे ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, या तो ये दो लूं या ये दो लूं, एज यू विश। तो अब आपने ट्रायंगल लेने हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अब आप लो इन ट्रायंगल COD और AOD, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOD, ठीक है। COD और AOD को अब हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो दोनों में OD कॉमन है, तो आप लिखोगे OG इक्वल टू OG कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है ना। सेकंड का इक्वल है, देखो इस COD का 1 और इसका 4 एंगल इक्वल है, क्यों? क्योंकि इट इज गिवन दैट बोथ आर 90 डिग्री एंगल, तो आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड क्या होगी साइड? OD कॉमन है, 1 और 4 इक्वल है, OA और OC भी तो इक्वल है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो आप लिखोगे OC इक्वल टू OA, रीजन गिवन, आप गिवन भी लिख सकते हो और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब चेक करते हैं कि तीनों कंडीशन लिखी हमने कि कोई कंडीशन से कोई कॉन्ग्रुएंस रूल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये ट्रायंगल ही थी, ये साइड यूज हुई है, ये एंगल यूज हुआ है, देन ये साइड SAS, यहां भी SAS, ठीक है। तो आप लिखोगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना, ट्रायंगल COD is congruent to triangle AOD, ठीक है ना। अब अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, देखो ये साइड कॉमन है, ये तीसरी साइड इसकी ये रहेगी और इसकी थर्ड साइड ये रहेगी, दैट मींस दे आर इक्वल, ठीक है ना। तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज CD इक्वल टू AD, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि CD और AD इक्वल हो गए, ओके। यहाँ क्या था, AB और CD को, दिस इज स्टार एंड दिस इज डबल स्टार, तो आप लिखोगे फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, ओके, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार। स्टार और डबल स्टार से क्या प्रूव हुआ, देखो CD AB के इक्वल था, AB इक्वल टू CD, और यहाँ CD AD के इक्वल है, ठीक है ना। तो AB CD AD इक्वल हो गए, AB CD और AD ये तीनों साइड्स इक्वल होगी। तो आप आगे लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस साइड। तो आप लिख देना डायरेक्ट, नो नीड टू टेक एनी अदर टू ट्रायंगल एंड देन प्रूव इट कॉन्ग्रुएंट, ऐसा मत करना। आपने दो बार कॉन्ग्रुएंस रूल दिखा दिया, फिर आप थर्ड टाइम लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव। आप क्या लिखोगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव। इसी तरह से हम क्या दिखा सकते हैं कि BC इक्वल टू CD, मैं सिमिलरली क्या दिखा दूं कि ये दोनों BC और CD इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ तीनों इक्वल थी, यहाँ लास्ट पेयर इक्वल हो गया, तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या होता है, दिस इंप्लाइज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो आप लिख दो, इसके बाद क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज AB इक्वल टू CD इक्वल टू AD इक्वल टू BC, ठीक है ना, कि AB CD AD और BC ऑल फोर साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो हमने जो स्क्वायर प्रूव करना था उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमने शो कर दिया है कि इसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल है और अपोजिट पेयर क्या बन गए, पैरेलल बन गए, क्लियर। अब हमें क्या प्रूव करना, अब रिमेनिंग रह गया, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। अब यही प्रूव करना रह गया। अगर ये प्रूव कर देंगे तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से दैट ABCD और दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, क्लियर। अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। इफ इन दिस पार्ट इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कमेंट। हमें कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले ये दो ट्रायंगल ली, इन दोनों ट्रायंगल से मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाया और पैरेलल दिखाया। फिर हमने ये दो ट्रायंगल ली, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाया। Similarly, we can prove that these two sides are equal. In this way, all four sides are equal. Clear? चलो अब हम प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट। Now we have to show that अब हमें क्या दिखाना है? Now we have to show that all four angles are 90 degree. ठीक है ना? चलो my dear students, अगर मुझे एंगल को प्रूव करना है 90 है, तो मैं दिखा दूंगी चारों एंगल इक्वल है।
if all four angles are equal and we know that by angle sum property of a quadrilateral that addition of या sum of all four angles is 360. अब तीनों चारों का सम 360 है और फोर एंगल्स इक्वल है तो वन एंगल क्या होगा 90 डिग्री एवरी एंगल ईच एंगल, तो हम ये शो करेंगे। तो मुझे अब शो करना है ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल, तो मुझे वही दो ट्रायंगल लेनी है जिसमें एंगल कंप्लीट आएंगे, ठीक है ना। तो देखो ए बी सी अगर मैं ट्रायंगल लेती हूं तो बी एंगल इसमें पूरा आ गया, ए बी सी में बी एंगल पूरा आ गया। नाउ आई विल टेक बी ए डी, उसमें मैंने पूरा ए एंगल को कवर कर लिया, ठीक है ना। अब ये दो ट्रायंगल हो, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो अब आप लोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, ठीक है ना। मैंने ए बी सी और बी ए डी दो ट्रायंगल ली, क्लियर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मुझे इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ए बी सी और बी ए डी को, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में फर्स्टली साइड्स क्या है, ए बी और ए बी क्या है इक्वल, ठीक है ना। तो आप लिखोगे ए बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए बी सी में भी है और ए बी ए डी में भी है, तो आप लिखोगे इक्वल साइड या कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है। सेकंड क्या लिखोगे, देखो अब हमने प्रूव कर देना कि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ए बी सी में बी सी और बी ए डी में ए डी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो आप लिखोगे बी सी इक्वल टू ए डी, प्रूव्ड या प्रूव कर चुके हैं। एंड थर्ड क्या लिखोगे, ए बी सी में ए सी डायगोनल, बी ए डी में बी डी, डायगोनल्स भी तो इक्वल है, तो आप लिखोगे ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी, सॉरी पहले आप ए बी सी है ना, ए सी इक्वल टू बी डी, ये भी क्या है गिवन था, ठीक है ना। तो बाय ऑल थ्री साइड्स इक्वल है, तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, मैंने इक्वल दिखा, कॉन्ग्रुएंट दिखा, ठीक है ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है वही नेचुरली ए बी सी में पूरा बी एंगल आ रहा है और बी ए डी में पूरा डी ए एंगल आ रहा है, इट मींस दीस टू एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप लिखोगे, ये रब कर रही हूं मैं बेटा, नाउ यू कैन राइट दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल ए बाय CPCD। मैंने CPCD से दोनों एंगल्स को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, बी और एंगल इक्वल हो गया। अब देखो लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, बी और ए इक्वल हो गए। नाउ यू हैव टू टेक द ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ट्रायंगल ये लूं ए बी सी और बी सी डी, इट मींस अगर मैंने फर्स्ट ट्रायंगल ये ले ली और सेकंड ट्रायंगल ये ले ली, इसमें बी सी और बी सी कॉमन है, ए बी और डी सी भी कॉमन है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी से मैं बी और सी को इक्वल दिखा सकती हूँ। सिमिलरली मैं सी और डी को इक्वल दिखा सकती हूँ। तो आपने एक पेयर शो कर दिया ना, नो नीड टू प्रूव द एनी अदर पेयर, आप लिख दो डायरेक्टली सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्योंकि आपको पता है ना कि सेम सेम सब कुछ चलेगा, दोनों सब कुछ ऐसे ऐसे ही कॉन्ग्रुएंस प्रूव होगा। तो आपने बी और इक्वल दिखा दिया CPCD से। अब आप लिखोगे सिमिलरली, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल C एंड एंगल C इक्वल टू एंगल D। सिमिलरली मैं ये दिखा सकती हूँ B C के इक्वल है और C D के, क्योंकि सेम सेम रीजन है, सब में एस कॉन्ग्रुएंस रूल ही लगेगा। आप कोई भी एक पेयर शो करके दिखा देना, ठीक है। तो देखो B A के इक्वल है, B C के इक्वल है, C D के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या इंप्लाई होता है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D। क्लियर, यहाँ पे समझ आया। अब आप लिखोगे we know that angle A plus angle B plus angle C plus angle D क्या है 360 डिग्री। कैसे 360 डिग्री है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो आप इसका रीजन लिख दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ऑल फोर, एडिशन ऑफ ऑल फोर एंगल्स 360, और यहाँ क्या था, चारों एंगल्स इक्वल थे, तो आप यहाँ दे दो 3 स्टार, क्योंकि आप डबल स्टार तो दे चुके हो ना, तो लिखोगे फ्रॉम 3 स्टार
फ्रॉम 3 स्टार। इससे क्या होगा कि मैं वैल्यू पुट कर दूंगी। अब एक बार है तो एज यू विश आप ए लिखो, बी बी लिखो, सी सी लिखो या डी डी लिखो, ठीक है। तो मैंने प्रूव किया, लिखा ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 360 डिग्री। 4 ऑफ एंगल ए 360 डिग्री, तो एंगल ए की क्या वैल्यू होगी 360 डिग्री बाय 4 90 डिग्री। If angle A is 90, then all 4 angles are 90, ठीक है ना। तो आप लिखोगे एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। फर्स्टली मैंने प्रूव किया था all 4 sides are equal and opposite pair parallel। सेकेंडली मैंने प्रूव किया all 4 angles are 90 डिग्री। अब देखो स्क्वायर बनने के लिए आपको प्रॉपर्टी स्क्वायर की रिमेंबर होंगी कि यही प्रॉपर्टी होती है, 4 sides are equal और 4 एंगल्स आर 90, और जो 3 कंडीशंस गिवन है ये भी स्क्वायर में होते हैं और ये तो ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है। दैट मींस दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो आप लास्ट में लिख दोगे हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD is a square. Clear? Now my dear students, if there is any doubt, then you can comment me in my comment box. This theorem is not a typical, this is very easy theorem, but just you have to watch this video attentively. Thank you my dear students.